Hello friends, let's solve this sum. I think I told you in the previous video to solve it by yourself. If you have not solved it yet, you just look at this video. An employee deposits a certain amount at the rate of 16% per annum and a certain amount at the rate of 12% per annum, simple interest. He earns rupees 1000 as an annual interest. If he interchange the amount interchange होता है 16% पे हो, 12% पे 12% पे हो, 16% पे, then he earns 100 rupees more, then find the amount, right? So you can look at the previous sum and you can try to solve it by yourself. So rate of interest in first case is 16%. Let's suppose the amount, so this is amount is X and the number of year, so that's for 1 year. How I know that it's a 1 year? This is a per annum. So per annum shows the 1 year. So number of year is 1, right? So this is, I will write over here 1. Now I is equal to PRN upon 100. Value of P is X. Then rate of interest is 16. This is wrong. This rate of interest is 16 and number of year is 1. So here it's 1, right? Now this is 100. So this will be 16x upon 100. This will be, let me write it clearly. This will be 16x upon 100. Now let's come here. I is interest and rate of interest. Sorry, it should be R over here. Rate of interest is 12. Number of year is 1. Principal amount is Y. And number of year is 1 year. So let's take I is equal to PRN upon 100. Value of P is Y. Rate of interest is 12. Number of year is 1. Here 100. So this is 12Y upon 100 एंड दोनों इंटरेस्ट का टोटल कितना हो रहा है? तो दोनों इंटरेस्ट का टोटल हो रहा है दैट्स 1000. सो 16x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1000. नाउ एलसीएम ले लेंगे. लास्ट में क्या था ऐसा सेम. सो दैट विल बिकम 16x प्लस 12y is equal to 1000 with 2 more zeros, right? So this will be let's say 1 lakh, right? This will be 1 lakh. Okay, so now this is 1 lakh, right? Okay, now interchange कर रहे हैं तो interchange करेंगे तो क्या हो जाएगा? After interchanging 16y upon 100 plus interchange करना है, right? Then 12x upon 100 is equal to 1100. Now this will be 16y plus 12x is equal to 1100 with 2 zeros, right? So this will be 1,10,000, right? Okay, now this is my equation number 1. This is my equation number 2. Now I will multiply equation 1 by 16. equation 1 को मैं 16 से multiply करूंगा. मैंने y का coefficient देखा तो इसमें y का coefficient है 12. So 2 को मैं 12 से multiply करूंगा. Multiplication is something like this, right? So multiplication is something like this. Sign change हो गई. इसमें cancel क्या हो जाएगा? So that will cancel 192y. 256 में से 144 जाएगा तो 112 and bigger number sign, that's plus 112. And here we have 2,80,000. Now 112 ये साइड जाएगा तो डिवाइड में. So this is 2500 again, 2500 rupees. Now ये वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे. So I think this one is easier equation. तो उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. एक्स मैंने लिख दिया 2500 प्लस 12y इज इक्वल टू 1 लाख. इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया, दैट्स 40,000. 40,000 वो साइड जाएगा तो माइनस में. So that's 40,000 minus 12y is equal to 60,000. इसका डिवीजन किया तो 5,000. So again the same answer, right? उसने 2500 16% पे and 5,000 rupees 12% पे रखे होंगे. Okay, now we are starting the cross multiplication method and it's one of the easier method. So let's understand this. So first of all we have to decide that इसके solutions कितने हैं, whether it has infinitely many solutions
वेदर इट हैज यूनिक सोल्यूशन एंड वेदर इट हैज नो सोल्यूशन। तो वो कैसे डिसाइड करना है, तो वो समझाने के लिए मैंने एक आइडिया की हुई है कि इसका फर्स्ट पेज पे है दैट हैज वन सोल्यूशन, राइट, इसका यूनिक सोल्यूशन, यानी सेकंड पेज पे है इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड थर्ड पेज पे है नो सोल्यूशन। सो पहले ये तीन अलग अलग सम रख के मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई किए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 4 ये साइड आया तो -4, सेकंड इक्वेशन के अंदर ये 5 ये साइड आया तो -5। ओके, नाउ दिस इज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। लेट्स राइट हियर A1 A2 कैसे लिखेंगे, दैट्स 2 and 3 -5 and -8 -4 and -5। नाउ हमें क्या करना है, तो हमें चेक कैसे करना है कितने सॉल्यूशन है, तो मैं यहां पे साइड पे दिखा रहा हूं। क्या करेंगे, हम A1 A2 लिखेंगे A1 अपॉन A2 और फिर इधर लिखेंगे B1 अपॉन B2। फिर देखेंगे कि क्या दोनों सेम है। ओके, तो 2/3 एंड -5 अपॉन -8 सेम है, नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू। और ये अगर डज नॉट इक्वल टू है, सेम, आई थिंक एलिमिनेशन मेथड में भी हम कर रहे थे, सेम नहीं है तो इसका वन सॉल्यूशन है। तो हम आगे कर रहे हैं, इसका एक सॉल्यूशन है। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है, तो मैं दिखा रहा हूं। ये x, ये y और ये 1 ये फिक्स है। उसके बाद उसके नीचे B1 B2, देन हमें क्रॉस बनाना है इस तरह, सेम ये साइड एरो होना चाहिए, ये साइड डॉट होना चाहिए। उसके बाद C1 C2 लिखना है, C1 C2 रिपीट, देन क्रॉस बनाना है सेम वे, यहां पे डॉट, यहां पे डॉट, यहां पे एरो, यहां पे एरो। C1 C2 के बाद A1 A2 लिखना है, A1 A2 रिपीट, देन डॉट बनाने हैं, देन B1 B2। इन शॉर्ट यू शुड रिमेंबर B1 B2 से शुरू होता है, B1 B2 पे खत्म होता है। नाउ उसमें वैल्यू रख देंगे, हमारे पास कौन सी वैल्यू है B1 B2 की, तो यहां से ले रहे हैं -5 -8। C1 C2 की वैल्यू है -4 -5, C1 C2 की वैल्यू है -4 -5, A1 A2 is 2 3, then A1 A2 again, that's 2 3, and B1 B2 is -5 -8. Now we will multiply it, so -5 -5 उसका मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों का आंसर के बाद कंपलसरी माइनस, यानी ये दोनों का जो सॉल्यूशन, सॉरी लेट मी ट्राई क्लियर, ये दोनों का जो सॉल्यूशन है माइनस ये दोनों का सॉल्यूशन, तो ये साइन तो फिक्स है माइनस का। नाउ हम क्या लिखेंगे, -8 -4। नाउ अगर आप सोच रहे हो कि -4 -8 लिखूं तो भी चलेगा, बट प्रीफरेबली मैं डॉट वाले से एरो वाला लिखता हूं। डॉट वाला पहले, एरो वाला बाद में। देखो, डॉट वाला पहले, एरो वाला बाद में। ओके, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, दैट्स फाइन इफ यू डोंट डू लाइक दैट। सो -4, then 3, here minus, then -5 into 2, here that's 2 into -8, minus, this is 3 into -5. So here it's -5 plus 25, minus, then -8 -4 plus 32. ओके, नाउ अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है साइन में कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का होता है, अरे वो तो एडिशन का रूल है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाती है। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड, गो टू द प्लेलिस्ट एंड लुक एट द वीडियो फॉर द बेसिक मैथ फर्स्ट, बेसिक मैथ के वीडियो देख लो, ठीक है। नाउ -12, ये माइनस मैंने कॉपी किया, ये -5 प्लस 2 क्या होगा, -10, देन ये -16 होगा, दिस इज माइनस, ये हो जाएगा -15। नाउ ये नीचे क्या हो जाएगा, 25 प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर साइन साथ में हो जाती है तो चेंज कर देनी है, 32 -12 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस। देन अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, आई विल रिकमेंड दैट कि वो बेसिक वीडियो फर्स्ट देख लो, उसके बाद ये समझ आएगा, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, साइन का जो मैटर है वो। नाउ दिस -16 प्लस 15। नाउ 32 में से 25 गया तो -7, बड़े नंबर का साइन, दैट्स -7 ओवर हियर। 12 में से 10 गया तो 2, बड़े नंबर का साइन, -2। 16 में से 15 गया तो 1, बड़े नंबर का साइन, दैट्स -1। नाउ x अपॉन -7 इज इक्वल टू बी 1 अपॉन -1, और y अपॉन -2 इज इक्वल टू बी 1 अपॉन -1। नाउ -7 ये साइड चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, सो वी हैव x इज इक्वल टू 7, हियर वी हैव y इज इक्वल टू 2, -2 डिवाइड बाय -1, दैट्स 2। सो मेरा सॉल्यूशन जो है वो हो गया 7 2, हियर आई हैव सॉल्यूशन 7 2। सो आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई का पहला जो फर्स्ट सम जो है वो आप लोगों को समझ आया। ये सम यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। आई थिंक दिस इज नॉट ऑफ द काइंड, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी वन सॉल्यूशन है, बट वो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।